Going to see about science and technology development, which is given in Group E section of your main syllabus, and this is one of the dynamic part, I could say, because the questions are very dynamic in nature. They will ask from here, and today topic for the discussion is space technology. And inside space technology, meaning is like today I'll be just give about the brief about this topic what you have to study. And even if you don't study also, if you are following the current affairs, because I am telling you this is the more of a dynamic part, right? So this science and technology things are more of your dynamic content. So you have to study Indian space programs, then application of satellites and uses for different purposes, then your missile programs, then remote sensing, GIS and its application in weather forecasting, disaster warning, mapping of water, soils and mineral resources, etc. So this is the part of space technology as per your syllabus you have to study. Okay, so today we are going to discuss about these things in very brief. Okay, first lecture, introduction lecture. Okay, so you don't expect much things, but yeah, whatever I'm going to discuss, at least you will have some broad idea what needs to be studied as part of this topic. So let's begin. And before begin, just one announcement. Today we are launching one uh, I mean, okay. So today, okay. So for 11th JPSC mains, okay. So this Sunday, coming Sunday, 14th of April, we are planning one men's orientation session, and this is completely free of cost. Just you have to fill this form, okay, your name and number of JPSC attempts so far you have attempted, okay, and then interested in JPSC oriented session. It will be held on 11th of, sorry, 14th of April, okay, 11th JPSC mains, and timing I'll be confirming once I get your response. Okay, so syllabus we have seen what needs to be done as part of syllabus. So let's begin and we'll discuss few. Yeah, so yeah, so let's start, guys. So as I mentioned, right, today we are going to see about space technology, right? Space space technology, which is there in your mains syllabus. Okay, now in space technology, if you see, so before going to that in depth of this syllabus, what do you mean by space technology? Okay, what do you understand by space technology? So first understand about technology. What is technology? Okay, because there is something, some meaning behind this, right? Technology, you could say science, okay, science plus your engineering, this equals to your technology. Are you agree with me? Science, and then you apply some engineering, and that becomes your technology. Okay, so and space, definitely you know about space. Space means space, and that too air, right? Air, or you can say aeronautical, aeronautical, right? So this is what in layman term you have to understand. So we are going to see about the technology part of it, okay, in airspace. You can say air space, okay, all right. So far so clear. Now, why we need to learn or understand this topic? Okay, forget about your UPSC syllabus and main syllabus. In general, also it's very useful. Okay, so we are going to discuss all those things in very detailed manner, so you don't have to worry about it. Okay, so let's start a few things. Okay,
And guys, one more thing, this space technology is very costly. Okay, it's very costly, it's not so cheap. So if you see only few major country, okay, major country in the whole world, okay, few major country in the whole world, they are investing money, okay, they are investing money in space technology, and India is one of them. India is one of them. Okay, so you could see Pakistan, Bangladesh, okay, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, they are nowhere in terms of space technology because this required a lot of research and development work, okay, and that you have to invest good amount of money plus resources, okay, that to your talented resources, right? So entire thing, if you have to club, then only you will be able to sustain in your space technology, right? Okay, now we are going to see some more details. Okay, ISRO, right? Is when we talk about space technology, we know that ISRO is our backbone, right? ISRO is our बैकबोन, ठीक है, इसरो इज आवर बैकबोन। तो इसरो का क्या डायरेक्ट इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? नहीं, इससे पहले जो पहला इसरो से जब प्रीडिसर था, इसरो तो बाद में बना, इसरो से जब पहले हमारा संस्था बना था, दैट इंस्टीट्यूट, राइट, दैट इंस्टीट्यूट, इट वाज नॉट इसरो फर्स्ट, राइट, रिमेंबर, इट वाज इनकोस्पार। Okay, this was the initially our institute for airspace, okay, and this we know the father you can say, or you know this guy's name, very respected, very powerful man, Dr. Vikram Sarabhai, right? Dr. Vikram Sarabhai, this is the man who established the institute, or you can say his idea, his contribute in airspace is tremendous. Airspace is tremendous, his contribute, right? So इनको इस पर का मतलब क्या था, इसका फुल फॉर्म अगर देखोगे, ये established हुआ था somewhere around 1960, okay, 1960 or 62, something like that. In this period this institute has been established, and इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिया, इंडियन है ना, इंडिया का था इंडियन, सीओ का मतलब क्या होता है? एप्पल एन का, आई से इंडियन, एन फॉर नेशनल, ओके, इंडियन नेशनल, then committee, this was one committee, remember this committee for space research, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? पहले क्या था, 1960 डायरेक्टली हमारा जो भी हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, इसरो, इसरो हमारा डायरेक्टली नहीं बना था, ठीक है। जब फर्स्ट इंस्टीट्यूट वाज इनकोस्पार, उसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, राइट। यही बाद में कन्वर्ट होकर हमारा क्या बना? इसरो। और इसरो का क्या फुल फॉर्म होता है? इंडियन, बताइए आप लोग, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च, RESEARCH, रिसर्च, एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इतना आपको पता होना चाहिए बेसिक्स इन टर्म्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ओके। मान के चलिए कि इतना आपको पता होना चाहिए। जब भी स्पेस टेक्नोलॉजी का बात आई, आपको जब एग्जाम पे लिखने का बात आई ना, तो एटलीस्ट आपको ये सब पता होना चाहिए कि इसरो है ना, इसरो से पहले इनकोस्पार, देन डॉक्टर विक्रम साराभाई, राइट। और ये स्टार्टिंग कब कब हुआ था? इसरो का हेडक्वार्टर हमारा बेंगलोर, राइट। इतना आपको पता है। नाउ विल कम
टू सम मोर पॉइंट हियर, वन टर्म, हम स्पेस टेक्नोलॉजी में हम क्यों आना चाहते थे, ठीक है, और क्यों हमारी शुरुआत हुई डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज मॉडर्न सोसाइटी के लिए, ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी के लिए इट्स वेरी इम्पैक्टफुल, बहुत इम्पैक्टफुल है। क्यों बताता हूँ मैं इम्पैक्टफुल क्यों है। इससे आप वेदर फोरकास्ट कर सकते हो, ठीक है, वेदर फोरकास्ट कर सकते हो। मतलब जैसे हम लोग नेट पे गूगल पे दिखाते हैं ना कि वेदर का फोरकास्टिंग क्या है, ऑल दिस डन बाय योर स्पेस टेक्नोलॉजी। ओके, देन कहीं पे अगर बाढ़ आ गया, राइट, बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, तो हम लोग बाढ़ के बाद हम लोग ये करते हैं ना, एयर मॉनिटरिंग करते हैं, राइट, पीएम सीएम जितना भी होते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट, वो एयर से मॉनिटरिंग करते हैं कि कितना हमारा जान और माल का हानि हुआ, राइट। ऑल दैट वी विल डू विद द हेल्प ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये एक क्या हो गया, हमारा एक इंडिजीनियस, इंडिजीनियस क्या हुआ, आर एन डी, और यू कैन से इनोवेशन। क्योंकि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी तुमने बताया कि सबकी बस की बात नहीं है, देन वी हैव टू पुट ए लॉट ऑफ एफर्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मनी प्लस योर यंग टैलेंट और टैलेंटेड रिसोर्स, राइट। फिर हमने क्या बताया कि सबसे पहले आपको ये क्या करना पड़ेगा, इंडिजीनियस जो है, इंडिजीनियस, इंडिजीनियस इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन, इसके लिए आप रेडी हो तो, मतलब इंडिया इज रेडी फॉर दिस, यस। देन आपका क्या होगा, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज होगा कि नाउ यू आर ए पावरफुल कंट्री, यू हैव सम रियली टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैन पावर, राइट। सो आपका इंटरनेशनल क्या होगा, कोलेबोरेशन होगा, राइट, कोलेबोरेशन, ठीक है। और क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा आपका, सोसाइटल डेवलपमेंट होगा। सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे होगा मैं बताता हूँ इससे थोड़ी देर बाद में। सोसाइटल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन होगा, राइट, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। All this will happen with the help of your space program, right? Space program, or you could say that space technology, space technology, okay, space टेक्नोलॉजी, राइट। ओके, ये सब क्या चीज होता है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करते करते जाता हूँ क्योंकि दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट यू हैव टू स्टडी इन दिस टॉपिक एंड टू गेट और फेच गुड मार्क्स, राइट, गुड मार्क्स। तो ये इतना चीज मैंने बता दिया आपको। अच्छा, वर्ल्ड का सबसे, जो स्पेस टेक्नोलॉजी का बात कर रहे हैं, स्पेस प्रोग्राम, सो वर्ल्ड का जो बेस्ट माना जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी में, दैट इज योर नासा, अमेरिका का। देन ईएसए, ठीक है, नासा का, ये यूएसए का है, यूएसए। और ये आपका यूरोपियन यूनियन का है, किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, राइट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और नासा का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, नेशनल एरोनॉटिक्स एरोनॉटिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये नासा का फुल फॉर्म, ये ईएसए का, और हमारा है इसरो, ठीक है। तो दिस आर द मेजर स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। चाइना का भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बट हम मेजर जो कंसिडर किया जाता है, दिस दिस आर द मेन कंपटीटर यू कैन से, और द वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस प्रोग्राम और स्पेस रिसर्च। इतना पता हो गया आपको। नाउ हमारा जो पहला ये था, ये करने की जरूरत क्या पड़ा मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाते हैं, इसका हिस्ट्री पे थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। जो आर्यभट्ट का नाम सुना होगा आपने, राइट। एक सेकंड, धोखा क्यों दे रहा है, ओके, चलो इसको वापस जाते हैं, फिर से आते हैं, 1 सेकंड, ओके।
आर्यभट्ट नाम सुना होगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक सैटेलाइट था, ठीक है, सैटेलाइट सैटेलाइट ये 1975 में, और इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था। फर्स्ट सैटेलाइट फर्स्ट सैटेलाइट कौन था? आर्यभट्ट, राइट। इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद लॉन्च व्हीकल के बारे में आपने बड़ा सुना होगा, राइट, इन न्यूज़पेपर और इवन सम करंट अफेयर्स मैगजीन। ये समथिंग कॉल्ड लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ये नाम सुना होगा, लॉन्च लॉन्च व्हीकल। व्हाट इज दिस लॉन्च व्हीकल? आपने नाम सुना होगा किसका? SLV, ठीक है, SLV 3 ऐसा कुछ सुना होगा, राइट। देन आपने ये भी सुना होगा PSLV। ये सब क्या है, ये सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हमारा कंटिन्यूटी होगा इस टॉपिक से। तो ये सब मान के चलो कि ये लॉन्च व्हीकल है। जब भी आपका स्पेस में कोई भी सैटेलाइट है, राइट, कनेक्टिविटी के लिए कोई चीज आपको उड़ान भरना होता है, तो ये सब लॉन्च व्हीकल मतलब जहां से इसको लॉन्च किया जाता है, राइट, स्पेस में। नाउ विद द टाइम दिस हैज ऑल इवॉल्व, एंड नाउ लेटेस्ट इज योर GSLV, राइट, GSLV। तो ये स्टार्टिंग था, फिर नेक्स्ट आया, फिर और आया, बीच में बताऊंगा भी, GSLV आया, देन GSET आया है, GSET। तो अगर मान के चलो कुछ भी नहीं पता आपको ना, अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो को भी देख लोगे और इससे आपको आइडिया लग जाए कि हमको अगर स्पेस टेक्नोलॉजी से इर्द गिर्द कुछ क्वेश्चन बनता है, देन व्हाट आई हैव टू राइट in that particular space technology questions, right? So these are the main thing, right? So SLV का अगर बता जाए तो फुल फॉर्म क्या होगा? S for satellite, सैटेलाइट। LV का मतलब लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल। PSLV का क्या होगा? सेम होगा, ये सिर्फ ये P फॉर पोलर हो जाएगा, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट। G का मतलब क्या हो जाएगा? SLV का मतलब सेम रहेगा ना आपका, लॉन्च व्हीकल। G का मतलब हो गया जियो सिंक्रोनस, सिंक्रोनस सबका मीनिंग बताऊंगा व्हेन टाइम कम्स, राइट। GSET का भी मतलब वही होता है, G फॉर योर जियो सिंक्रोनस, ठीक है, जियो सिंक्रोनस, ऑल राइट। और SAT मतलब सैटेलाइट, सैटेलाइट। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, और GSLV का मतलब जियो सिंक्रोनस, राइट, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। PSLV का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, राइट। इतना चीज आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक रोहिणी नाम का सैटेलाइट था, रोहिणी, ये नाम दिया था जैसे आपका चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, राइट, उस टाइप का एक रोहिणी नाम का सैटेलाइट हुआ करता था। सैटेलाइट ये इंपॉर्टेंट है, जब हम बैकग्राउंड देख रहे हैं तो इसको भी पढ़ लेते हैं। ये मतलब इंडिया ने जब लॉन्च किया था, राइट, इंडिया ने जब उसको लॉन्च किया था, ये वर्ल्ड का 6th है, ठीक है, और इंडिया का फर्स्ट था, रिमेम्बर, ठीक है। इंडिया वो आर्यभट्ट को छोड़ के जो रोहिणी वाला सैटेलाइट था, ये एक तरह से अगर आर्यभट्ट को काउंट करोगे तो ये दिस वाज द सेकंड फॉर इंडिया, बट वर्ल्ड का 6th था, सोचिए। तो इन स्पेस प्रोग्राम इंडिया इज नॉट सो बिहाइंड फ्रॉम ऑल डेवलप्ड नेशंस, वी आर गोइंग इन हैंड, है ना, हैंड इन हैंड विद द डेवलप्ड कंट्रीज, ओके। हाँ, नासा के कंपेयर में, बट यू नो अभी थोड़ा डिस्कस करता हूँ उसे बाद में, ठीक है। तो वी आर इन द 6th वर्ल्ड व्हेन वी लॉन्च रोहिणी सैटेलाइट, रिमेम्बर, ओके। एंड दिस वाज इंडियाज फर्स्ट indigenous that launched successfully, ओके, दैट रोहिणी सैटेलाइट। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। नाउ देर आर, सो what we understood so far? We understood SLV, then PSLV, right, then GSLV, then GSAT, right, we understood this। इसका वर्जन विथ टाइम चेंज होते रहता है ना, तो वो आप करंट अफेयर्स में देखते रहना, या तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ये SLV का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल,
जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एंड जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेट 90 में आपका एक और टाइप आता है ASLV, ठीक है। ASLV इसका इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आगुमेंटेड सैटेलाइट, फिर सेम रहेगा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। विथ टाइम अगेन वी हैव ये PSLV का इसके बाद ही था, राइट, ASLV और PSLV, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख दिया था, उसके बाद ये दो आया, करेक्ट। इतना समझ में आ गया आपको? ओके, क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, है ना। सैटेलाइट का प्रोग्राम जो है, राइट, वी अंडरस्टूड द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नाउ सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। सैटेलाइट प्रोग्राम, ना सैटेलाइट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? आपने नाम सुना होगा एक इनसेट करके, इनसेट सुना होगा, IRS सुना होगा। व्हाट आर दोस, राइट? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस इनसेट एंड IRS। इनसेट का मतलब क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। और IRS का मतलब क्या होता है? ठीक है, इंडियन रिमोट, I फॉर इंडियन, R फॉर रिमोट, ठीक है, S फॉर सेंसिंग, मतलब सेंस करना। देन यू कैन से सैटेलाइट। इतना तक क्लियर हो गया आपको? नाउ इतना मैं क्यों बता रहा हूँ? नाउ यू नीड टू एटलीस्ट गेट यूज टू ऑफ दिस टर्म व्हेनेवर यू लर्न स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी, यू डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस टर्म, है ना। ज्यादा लोग कंफ्यूज क्या होता है कि SLV क्या होता है, PSLV क्या होता है, GSLV क्या होता है, इनसेट क्या होता है, IRS क्या होता है। दे आर नॉट फेमिलियर विद दिस टर्म and they get confused. They think these are the rocket science. No, these are the not rocket science. Okay, I'll make you comfortable with this term and this terminology, right? Just watch this video peacefully, right? So SLV3 मैंने बता दिया। इनसेट वे इसका क्या काम है आगे बताऊंगा। नाउ ये दो का काम जो है ना, मेजर काम है। इस दो का जो मेजर वर्क है, जहां मैंने बताया ना कि सोसाइटियल चेंज, राइट, और या तो डेवलपमेंट, है ना, ये आप बोल सकते हो। तो इसका जो मेन काम होता है ना, इनसेट क्या बोलता है कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ना यू रिमेम्बर, जो हमारा आजकल का टीवी आता है, टेलीविजन, वो आपका क्या आता है? एक आता है सैटेलाइट बेस्ड टीवी आता है, राइट, सैटेलाइट बेस्ड, करेक्ट। और जो टीवी में ब्रॉडबैंड चलता है, वो भी क्या होता है? ठीक है, ब्रॉडबैंड मतलब इंटरनेट, वो भी सैटेलाइट बेस्ड होता है, राइट। देन योर कम्युनिकेशन, now communication industry has changed with the help of satellite technology, ठीक है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। देन योर वेदर फोरकास्ट, मतलब वेदर का फोरकास्ट करना। अब पहले ही पता चल जाता है कि नेक्स्ट 2 days there will be rainy season, rainy day, or some kind of cloudy weather, something like that. So you will get it advanced, right? Then similarly, अगर आपको अर्थ का ऑब्जर्व करना है, अर्थ का नेक्स्ट मीन्स यहाँ पे लिख देता, ठीक है, अर्थ का ऑब्जर्वेशन। अब अर्थ का ऑब्जर्वेशन मतलब जैसे कि आपका अर्थ क्वेक आ गया, राइट, जैसे एग्जांपल दिया, अर्थ क्वेक आ गया, सूखा आ गया, राइट, बाढ़ आ गया, फ्लड, ठीक है। तब देन व्हाट यू डू फॉर एयर सर्वाइलेंस यू डू, राइट, ठीक है। तो दीज आर द वेरी मच यूजफुल इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। सो विक्रम साराभाई का जो कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स स्पेस प्रोग्राम एंड स्पेस टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन, सैल्यूट टू हिम एंड से थैंक you very much. You given such a tremendous technology to us where we are currently standing, right? ये तो समझ में आ गया। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोलता है? नेक्स्ट क्या कहता है? अगर
आपने चंद्रयान 1 के बारे में सुना होगा जो 2008 में आया था, राइट? 2008 क्या था वो? चंद्र चंद्रयान 1 2008 में। ये चंद्रयान जो है ना, ये लूनार स्पेस में है, ठीक है। आपको भी टर्म बहुत सारा समझ में आ मतलब चाहिए आपको। ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है, लूनार क्या होता है, राइट, पोलर क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, सो डोंट वरी, okay, when the lecture get proceed, okay, so with those lecture we will get used to this technology. So इंडिया का क्या था ना, फर्स्ट जो चंद्रयान 1 था, 2008 की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया का फर्स्ट जो आपका लूनर मिशन था ये, ठीक है, फर्स्ट लूनर मिशन। और ये आपको लॉन्च किया गया मून का ऑर्बिट पे, ठीक है, मून का ऑर्बिट पे फर्स्ट लॉन्च किया गया था। अंडरस्टूड? नो 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 प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट आपका जो मार्स का ऑर्बिट है, ठीक है, ये तो मून का ऑर्बिट, सिमिलरली मार्स का भी ऑर्बिट होगा, मार्स ऑर्बिट मिशन। ये मिशन किसके लिए था? मून का ऑर्बिट मिशन के लिए क्या था? चंद्रयान आपका 1। नाउ मार्स ऑर्बिट मिशन की बात कर लेते हैं। नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट मार्स ऑर्बिट मिशन। और मार्स का जो ऑर्बिट मिशन का नाम था, है ना, वो आपका मंगलयान था, राइट? अंडरस्टैंड दिस, मंगलयान। दिस इज इन 2014, remember this, 2008 mission was moon orbit, है ना, mission moon orbit, that is Chandrayaan 1 in 2008, and again Mars orbit mission in 2014, and that is your Mangalyaan. But this is your fourth in world to reach Mars orbit, to reach Mars orbit. Understand this, you have to remember. And इसी के साथ फर्स्ट इन इंडिया that, okay, okay, this was fourth in world, or you can say not India, फर्स्ट इन वर्ल्ड भी बोल दो, वर्ल्ड, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी ने सक्सेस पाया, फर्स्ट अटेम्प्ट who have succeeded, okay, so वर्ल्ड कप चौथा था। और वर्ल्ड कप ऐसा था फर्स्ट की फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमने सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दिया, मैं पहुंच गया मंगलयान। तो ये आपका थोड़ा सा बेसिक था। और रिसेंट डेवलपमेंट की बात कर ले, 2008 का बता दिया आपको कि चंद्रयान 1 है, ठीक है, चंद्रयान 1, दिस वाज फॉर योर लूनर एंड दैट टू फॉर योर मून ऑर्बिट। मार्स का जो ऑर्बिट पे था मिशन मंगलयान, राइट, एंड फोर्थ इन द वर्ल्ड टू रीच मार्स ऑर्बिट, okay, Mars orbit, and then first in the world which gets success in first attempt. Okay, now we'll see some recent development. What happened? recent development recent development अगर देखा जाए, या तो या एंड फ्यूचर गोल्स यू कैन से, दोनों देख लेंगे। फ्यूचर गोल्स, रिसेंट डेवलपमेंट, अभी 2019 में जो हुआ था, ठीक है, और 2000 लास्ट ईयर ही हमारा जो चंद्रयान 3 था, चंद्र, ये कौन भुला सकता है इसको, चंद्रयान 3 को साउथ पोल पे लैंड किया था, राइट। ये सब हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देन आपका ये चंद्रयान, राइट, ओके। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और चीजें जो कि आपको डिस्कस करना जरूरी है। देखो, मेन जो आपका अचीवमेंट है, so far we have got from our space technology, right, space program, what we have achieved, okay, from our space program। now see, मैंने आपको बता दिया जो इनसेट है ना, इनसेट फुल फॉर्म बता दिया, भूले तो नहीं है ना इनसेट के बारे में। इनसेट का क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अच्छा, एक टर्म आता है यहाँ पे रिमोट सेंसिंग। रिमोट का मतलब क्या होता है? दूर। सेंसिंग मतलब टू सेंस, मतलब सेंस करना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंने क्या दिया, जब बाढ़ आती है, ठीक है, आपदा आती है,
तो हमारा राज्य का सीएम या पीएम जो मॉनिटर करने के लिए जाते हैं, राइट, तो वो एयर में ही रहते हैं, वो दूर से ही कैसे पता लगा पाते हैं कि कितना हमारा नुकसान हुआ? दैट इज बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। मतलब दूर से ही सेंस किया जाता है किसी चीज को पता लगाने के लिए, बाय यूजिंग दिस रिमोट टेक्नोलॉजी, राइट, रिमोट सेंसिंग। सो अंडरस्टूड, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ओके, नाउ अनदर एप्लीकेशन इनसेट का। ठीक है, इनसेट का आपका जो टेलीकम्युनिकेशन बताया आपको, टेलीकॉम में ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट, अंडरस्टूड। तो ये आपको क्या करता है, टेलीकॉम को सर्विस प्रोवाइड करता है ना, फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एग्रीकल्चर में हम यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में क्या यूज हो सकता है? एग्रीकल्चर में ऐसा यूज होता है, या स्पेस टेक्नोलॉजी का, यू कैन से रिमोट सेंसिंग का। ये करता क्या है ना, कौन सा पहले ब्लू, ठीक है, ओके। जो आपका सॉइल का कैपेसिटी है, राइट, है ना, सॉइल का हेल्थ जिसको बोलते हैं, सॉइल हेल्थ को चेक करते बता देगा, है ना, हाई यील्ड, ठीक है, सीड्स, इसके बारे में आपको जानकारी देती है, राइट। उसके बाद इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका भी जो भी, ठीक है, मतलब आपका मान कोई फॉरेस्ट है, राइट, फॉरेस्ट है, तो आपको ऊपर से ही थ्रू एयर सर्वाइलेंस क्या करेगा, देखेगा कि फॉरेस्ट का सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो वो इन्वायरमेंट से भी रिलेशन आपको इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। इतना ही समझ में आ गया। नाउ मेन क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड, इतना तो जो मैं आपको बता दिया कि ये बेनिफिट है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। व्हाई वी नीड स्पेस प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम। पहला है आपका, वी नीड दिस स्पेस प्रोग्राम बिकॉज सोशियो इकोनॉमिक, आपको पता है सोशियो इकोनॉमिक मीन्स सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट, राइट, विकास, सामाजिक आर्थिक के विकास। वी नीड दिस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप बोलो सर, आप सैटेलाइट से कैसे ये पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल इसलिए है ना, मैंने आपको क्या बताया, IRS, राइट, IRS का बताया क्या, रिमोट सेंसिंग। कहा गया वो, क्या बताया, रिमोट सेंसिंग, राइट, रिमोट सेंसिंग मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इससे क्या करता है, थ्रू IRS, IRS में क्या होगा यहाँ पे, हाँ ये पे था ना, यहाँ पे IRS से क्या करेगा ना, मान के चलो कोई एकदम झारखंड का एग्जाम्पल, झारखंड का कहीं एकदम दूर एक गांव है, ठीक है, विलेज है, और वहाँ ना इंटरनेट की व्यवस्था है, ठीक है। वैसे भी झारखंड में ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी तो नहीं है, apart from the main city and town, right, we don't have broadband facility, correct, you agree, broadband facility। तो अगर कहीं का, अगर इस विलेज के बच्चों को एजुकेशन चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, वहां तो मिलेगा नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, क्या मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी के थ्रू, है ना, ई एजुकेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन थ्रू सैटेलाइट गरीब बच्चों को भी दे सकता है, ठीक है। तो आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, सामाजिक आर्थिक, जब क्वालिटी एजुकेशन इस बच्चे को भी मिलेगा जो दूर दराज में है ना, थ्रू योर IRS, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो आपको क्या होगा, उसमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सिमिलरली इसके साथ आपको आजकल एग्जांपल देखता हूँ, अगर आपने सुना होगा प्रेक्टो के बारे में, यू नो द प्रेक्टो, आपने क्या, ऑनलाइन डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो, ऑनलाइन डॉक्टर के साथ अपना हेल्थ चेकअप वगैरह सब करा सकते हो, राइट, दैट इज रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसकी मदद से होता है, दैट इज नथिंग बट योर सैटेलाइट, राइट। तो आपका ई एजुकेशन हो गया, है ना, ई हेल्थ सिस्टम हो गया, ठीक है। प्रेक्टो एक प्लेटफॉर्म है, आप सर्च करना गूगल पे मिल जाएगा। these are मतलब these are the things they are using extensively, intensively, this space technology flight program, right, इतना चीज हो गया ना। अगर दूसरा बात करें हम, दूसरा बात करें
हमने क्या देख लिया कि ई मेडिसिन, सॉरी ई एजुकेशन, ई एजुकेशन, इसको हटाओ यार, ई एजुकेशन मतलब गरीब दूर दराज बच्चों को भी मिल रहा है। सिमिलरली टेली मेडिसिन, जिसकी मैं बात किया, ठीक है, टेली टेली मेडिसिन, राइट, टेकटॉक का एग्जाम्पल दिया। ऐसा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दे आर यूजिंग। ई एजुकेशन मतलब क्वालिटी एजुकेशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू थ्रू सैटेलाइट, सैटेलाइट। तो यहाँ से क्या हो रहा है मेरा, सोशियो इकोनॉमिक, राइट, डेवलपमेंट हैपनिंग फॉर आवर कंट्री एंड इट्स वेरी मच अप्रिशिएटिंग, राइट। नाउ फिर हमने क्या बताया आपको, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करता है। पहले से आपको प्री क्या बोलते हैं, आपको एक तरह से अलर्ट कर देता है, अलर्ट कि इतना तारीख से फॉर एग्जांपल आपका कहीं पे फ्लड आने की सिचुएशन है, कहीं सुनामी आने का सिचुएशन है, तो ये आपको क्या करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, राइट। सिमिलरली प्री में भी करता है और पोस्ट मैनेजमेंट में जो करते हैं, राइट, पोस्ट मैनेजमेंट में एग्जांपल दिया था कि सीएम या तो पीएम है ना, अपना हेलीकॉप्टर से जिस एरिया में अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे अपना देखने जाते हैं। तो क्यों, मैंने आपको आईआरएस का एग्जांपल दिया, थ्रू आईआरएस टेक्नोलॉजी दे विल गेट द रियल टाइम एक्सेस, है ना, रियल टाइम एक्सेस। फिर उस रियल टाइम में उस टाइम का सिचुएशन में क्या हो रहा है ना, तो दे विल गेट टू नो अबाउट दिस सिचुएशन, राइट। ना एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, मैंने आपको बता दिया कि क्रॉप, ठीक है, यहाँ तक कि सॉयल, ठीक है, सॉयल का हेल्थ के बारे में दे विल कम टू नो, अंडरस्टूड, एंड देन रिड्यूस क्लाइमेट, क्लाइमेट का क्या, वेरिएबिलिटी, ठीक है, वेरिएबिलिटी, दैट मीन्स क्लाइमेट से रिलेटेड, है ना, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, देन विद रिस्पेक्ट टू द डिजास्टर मैनेजमेंट, एवरीथिंग they are telling in advance. So this is the beauty of red pen law, this is the beauty of this technology, this is the beauty, ठीक है, beauty of space program, ठीक है। that's why India is investing lot of money in R&D, ओके। तो सिर्फ स्पेस प्रोग्राम का डिफेंस में ही यूज नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं इन जनरल, कि इन जनरल कि डिफेंस से रिलेटेड है, राइट, डिफेंस से रिलेटेड है, नहीं, डिफेंस में तो है ही है, डिफेंस में है ही है। उसके साथ साथ इसको हम लोग बोलते हैं रडार, राइट, RADAR। रडार इज व्हाट, रडार इज मींस व्हाट, अब बताओ रडार का मतलब क्या होता है। रडार के बारे में आपने सुना हो, नहीं सुना। रडार मतलब आपका होता है रेडियो, ठीक है, रेडियो, ये डी है, ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे हम ले, ठीक, रडार, RADAR, ठीक। रडार का मतलब आपको बताया कि रेडियो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये बेसिकली आपका मोस्टली, है ना, मोस्टली आपका डिफेंस जो है ना, डिफेंस में होता है। फॉर एग्जांपल ये बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया, इसका क्या काम होता है, मान के चलिए कोई आपका बॉर्डर है, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, कहीं कुछ हमारा जो एनिमी कंट्री है, enemy country, they are trying to attack something, okay, so this radar will get active, get active and they will alert us, alert कर देगा, ठीक है। तो radar का मतलब क्या होता है, वो आपको इंफॉर्मेशन देगा कि यहाँ कुछ बाहरी तत्वों ने कुछ तो गड़बड़ किया है, एंड आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, आवर डिफेंस सिस्टम will get
एक्टिवेटेड। ओके, तो ये हमारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम का यूज है वो डिफेंस में भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफेंस में होता है, ये मैंने आपको जितना सारा एग्जांपल बता दिया, डिजास्टर मैनेजमेंट में, राइट, टेली मेडिसिन में, ई एजुकेशन में, देन आपका एग्रीकल्चर में, राइट, देन आपका एक चीज बताया था, हाँ हाँ, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन, तो ये सब हमने देखा। These are the major benefit of this space program. So India is heavily investing these areas, right? Now, उसके बाद हम क्या दे सकते हैं, ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी बताई दिया। डिफेंस मतलब क्या, नेशनल सिक्योरिटी का बात आ गया। नेशनल सिक्योरिटी में सब हम देख सकते हैं इसका यूज, और कम्युनिकेशन वगैरह सब हमने बता दिया। नाउ एक और अभी जो इंडिया गवर्नमेंट के पास चैलेंज है इन टर्म्स ऑफ बजट, क्योंकि स्पेस प्रोग्राम एज आई टोल्ड यू, ठीक है, स्पेस प्रोग्राम इज नॉट इजी, इजी इन द सेंस इज नॉट चीप। ओके, सस्ता नहीं है, काफी महंगा है। सो इंडिया ट्राइंग फॉर टू promote private what you say private company for better ecosystem। ठीक है, बेटर इकोसिस्टम मतलब एक जो ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए, रोबस्ट इकोसिस्टम विथ प्रॉपर R&D, R&D इन द सेंस इनोवेशन। क्योंकि जब प्राइवेट प्लेयर आ जाएगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट हैज सम लिमिटेड फंड्स, राइट, गवर्नमेंट हैज लिमिटेड फंड्स एंड उसको सिर्फ स्पेस पे सारा नहीं खर्च कर देना है। गवर्नमेंट हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, राइट, गवर्नमेंट के पास बहुत प्रायोरिटी वर्क है, गरीबी हटाओ, एजुकेशन पे रिसर्च हो, है ना, फिर इतने सारे वेलफेयर स्कीम्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, लॉट ऑफ थिंग्स। देन so government has limited funds, so he cannot invest lot of money into one segment, this is in your space program। so private को आना चाहिए, लेकिन प्राइवेट में क्या होगा, प्राइवेट के पास अनलिमिटेड मनी है, राइट, अनलिमिटेड मनी है, यहाँ तक कि आपको एफडीआई भी आ जाएगा। और इवन इंडिया लाइक कंपनी लाइक रिलायंस, राइट, अडानी, टाटा, these big players can come and participate in your space program. But only thing, when it comes to national security, that's why India is more worrying. They can come and they promote the space program with the better ecosystem. The thing is, concern is national security concern. So this is the one of the most challenge India is facing. Okay, so you can write this point also, if in terms of challenge, right, challenge where our Indian space program is facing is challenge in terms of budget। ठीक है, बजट, लेकिन प्राइवेट प्लेयर को इनेबल कर दें, इफ यू इनेबल प्राइवेट players then everything will be okay, but that again concern is your national security, right, national security। then second challenge is, one is a budget, second is your human resource, मतलब मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो होता क्या है ना, आपने हमेशा न्यूज पे ये सुना होगा, राइट, कि जो, देखो अब मैंने आपको क्या बताया, टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी का अगर बात कर रहे हो आप, यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेस, है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी का मतलब, आज एज आई टोल्ड यू, राइट, दिस इज साइंस प्लस इंजीनियरिंग, राइट, इक्वल्स टू योर टेक्नोलॉजी, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द टॉप मोस्ट जो टॉप कॉलेज का, इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है, राइट, टॉप कॉलेज स्टूडेंट, दे आर मूविंग टुवर्ड्स, ठीक है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स अब्रॉड, अब्रॉड मतलब विदेश, विदेश जाते हैं। दे आर नॉट स्टेइंग इन इंडिया। ओके, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीबडी, मोस्ट, है ना, मोस्ट दे आर गोइंग अब्रॉड एंड दे आर वर्किंग फॉर नासा। ओके, इंस्टेड ऑफ इसरो, इसरो को छोड़ के, अपना देश को छोड़ के वो नासा पे काम कर रहे हैं। देयर आर मेनी साइंटिस्ट, they are from IIT, NIT, BITS, I mean all top colleges, all top brains, okay, all top brains, they are working for NASA, they are not working for ISRO because of money, because as I told, India is having some limited funds, ठीक है, limited budget,
limited funds or limited budget. So India cannot invest so much of money and can't make the employee happy in ISRO. They are going outside, they are working for NASA, they are working for ESA, European Space Agency. So यहाँ पे हमारा ह्यूमन रिसोर्स का क्राइसिस है डेवलपमेंट का, क्योंकि हमको नॉर्मल ब्रेन नहीं चाहिए स्पेस टेक्नोलॉजी, वी नीड talented brain. ठीक है, talented brain, and most of the talented brain from IIT and NIT, they are going to USA or European agency and other country. They are going and working for them for better money. ठीक है, ये तो पहला बजट का है। सेकंड का बजट से रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स का भी हमारे पास इश्यू है। उसके बाद जो इंडस्ट्री का जो कमर्शियलाइजेशन है, मतलब प्राइवेटाइजेशन, जिसको मैं बात किया अभी, प्राइवेटाइजेशन भी हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है। ये सब चीज़ें हमारे पास चैलेंजेस है, राइट। तो होप आपको यहाँ से कुछ बेसिक चीज़ें पता चल गया होगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी व्हाई वी नीड टू लर्न। ओके, लेट्स समराइज इट व्हाट वी हैव डन सो फार। ओके, देखिए मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में, space program, right? So as I mentioned, right, world one of the emerging space program we are doing, right? India, ISRO is performing one of the leading emerging innovation in terms of space program, and the NASA and ESA, they are the best in the world. After that, ISRO, we can say that, and we have ISRO space program is basically we are trying for our indigenous innovation, international collaboration, societal development कैसे होता है मैं बता दिया, and scientific experiment, right? Because all R&D is experiment. Sometimes we may fail, ठीक है, we may fail, ठीक है, and sometimes we may pass, means get success, but this is nothing but experiment, scientific experiment. All right, we have done so far this. Then I told you Aryabhatta satellite, ठीक है, so 1975 फर्स्ट सैटेलाइट फॉर इंडिया, ठीक। देन लॉन्च व्हीकल के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया, SLV, PSLV, GSLV, GSAT के बारे में, एंड द पोलर वन। देन रोहिणी सैटेलाइट के बारे में, राइट, सैटेलाइट इंडिया का ये 6 था, फर्स्ट ये था, वर्ल्ड का 6 था, सॉरी, आई मीन। देन नेक्स्ट वी हैव सीन दिस augmented, then augmented SLV, then PSLV ऑलरेडी सीन 90 के आसपास ये दोनों आया था। सैटेलाइट प्रोग्राम में इनसेट IRS, इसका इनसेट का मतलब आपको बता दें कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम एंड इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एंड यूज फॉर टीवी ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, ऑल दैट, राइट। देन अर्थक्वेक फ्लड वगैरह में काम आता है, ये सब चीज आपको बताया। देन नेक्स्ट पार्ट वी हैव सीन फॉर चंद्रयान 1 2008 lunar space program mission was lunar orbit, Mars 2014 lunar orbit mission Mangalyaan, right? This is the fourth in the world and first in the world who got succeeded in very first attempt itself. And then recent development Chandrayaan 3 South Pole may land. Then I talked about orbit, lunar and polar. Then what next? Space program, that INSET I told you, right? This is our I mean for एजुकेशन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम आता है। देन आपका लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स टेलीमेडिसिन थ्रू योर प्रैक्टिस, जस्ट एग्जांपल आई हैव गिवन। ऑनलाइन डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हो रियल टाइम वीडियो के साथ। टेलीकॉम ब्रॉडबैंड सैटेलाइट में आप इसका काम कर सकते हो, यूज मतलब कर सकते हो। देन सोयल का हेल्थ या तो क्रॉप का हेल्थ भी पता कर सकते हो। Oil silts, environment related anything issues we can come to know about this. Then agriculture, okay. Then what next? Already discussed education, telemedicine. Through this we can achieve socio-economic development, and or India is facing some budget constraint in terms of R&D development because it not it is small amount of budget you need a bigger amount of budget in order to sustain for longer time in terms of space program, राइट। ऑल वी अब सिर्फ प्री अलर्ट भी कर देता है, पोस्ट मैनेजमेंट भी करता है ड्यूरिंग योर डिजास्टर, एंड देन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, देन क्रॉप सॉइल हेल्थ ऑलरेडी मैं बता दिया आपको। ऑल दैट वी हैव सीन, रडार के बारे में आपको बता दिया। एंड दिस इज आल्सो वेरी यूजफुल इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, है ना।
monitoring defense in border areas using radar radio detection and ranging, इसका full form। ओके, ये सब मैंने आपको बता दिया। सो फॉर वन लेक्चर, एक सेकंड कहाँ गया है, हाँ ना challenges बता दिया आपको, एक सेकंड कहाँ था, right, okay। Now we have seen challenges, we are facing a budget challenges, so we are trying for private partnership with private player, but again national security is again concern। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट में भी आपका बजट का ही कंसर्न आ जाता है कि जो फ्रेश माइंड है, टॉप कॉलेजेस पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स अब्रॉड एंड दे आर वर्किंग फॉर नासा और समथिंग एल्स और ईएसए, बट दे आर not and it's not 100%, okay, but majority of students they are trying uh, to get job in abroad, not in India, so this is the another challenge। So far we have seen this one। So guys, कैसा लगा ये वीडियो? This is the first science and tech lecture in terms of space technology। I hope you have got something about this। If you got something and benefited at least 1% of this syllabus, please hit the like button and subscribe the channel। Thank you so much, मिलते हैं next video में, bye, take care। And if you are interested for men's our orientation session on Sunday, you can fill this form, okay। Thank you so much, मिलते हैं next video।